Treat for mosquito. About the blood test. इस चैप्टर को पूरी रीति से जानने के लिए चलिए मिलते हैं जसप्रीत, रजत, नैन्सी और आरती से। इनके बीच में ये क्या बातचीत चल रही है, चलिए उनसे ही सुनते हैं। Hey, Rajat is back at the school. He has been absent for many days. How are you, Rajat? Tell me, how are you now? I'm all right, Aarti. Now I'm all right. You must have played a last stop while you were at home, you know? Rajat, you are playing, no? Who wants to play when you have fever? On the top of it, I had to take a bitter medicine. Ayo, amma, bitter medicine. Even I had the blood test. Ooh. Ayo, blood test? For what? Why must have been every painful? What happened to you? Actually, when the needle pricked in my finger, it felt like an ant bite, you know. Oof. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. Rajat, but you had the malaria when any mosquito bites you. So what happened to you? Where you went? Yes, but we find out by the blood test now. You don't know blood test. It is very painful. Ooh. Hey Rajat, there are lots of mosquitoes in my house in these days, but I did not get malaria. All the mosquitoes are biting me. When my mummy not putting then all out, then they came and bite me. But nothing happened to me. What happened to you, Rajat? Why this happened to you, Rajat? Who says Jaspreet? Every mosquito bites cause malaria? It's not true. Malaria spreads only by the disease-carrying mosquitoes. You don't know? Madam told you. If you want, then we can go to the Pinky Madam's room. You can ask there, I know that. Nancy, all the mosquitoes are same thing to me. Everyone is just alike, I cannot find the difference between the mosquitoes. How to know which mosquito will cut me and bite me and having the malaria? There must be the difference. We should know it, no? Did they take the blood from the place where the mosquito has bitten you? I'm very sorry. I'm very sorry, Rajat, for you. Of course not. How do I know when and where the mosquito bites me? But how could they find out that you had malaria by your blood test? Do you think they could see something in the blood? I think so. We should go to the madam, Pinky Madam. Let's go, no? I like she is giving a very good chanachur, no? I like that. I will eat that one. Let's go. Oh. वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है। जसप्रीत, आप तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। रजत, बहुत दिनों के बाद आप आए हो ना? अच्छा, कोई बात नहीं। नैन्सी, आरती, वेलकम। अच्छा, मुझे नैन्सी ने बता दिया था फोन करके कि आप जानना चाहते हैं कि ये मॉस्किटोज अलग अलग होते हैं या फिर एक जैसे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे होते हैं मॉस्किटोज और ये ब्लड के अंदर जाकर के करते क्या है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सो जसप्रीत वगैरह की बातें तो आपने सुन चुकी हैं। अब देखते हैं कि ब्लड टेस्ट होता कैसे है। तो ज़्यादातर ब्लड टेस्ट हमारा वेन में जा कर के होता है, क्योंकि अगर
बहुत बार ऐसे हम सोच सकते हैं ना कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, कि किसी को इंजोर हो गया या हाथ पैर में कहीं चोट लग गई, तो हम वहाँ से भी तो खून निकल रहा है, वहाँ से भी तो ब्लड निकल रहा है, तो उस ब्लड को निकाल के हम टेस्ट क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल बहुत बार आता है। तो ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप किसी अपने टीचर को कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो किसी बच्चे के थ्रू से पहुंचाएंगे तो हो सकता है बच्चा अधूरा बात बोले, मगर जब आप टीचर को डायरेक्टली फ़ोन करके बताएंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली कन्वर्सेशन जब होता है तो उस तरह का कोई दिक्कत होता है नहीं है। तो ये डायरेक्टली जब वेन से हम ब्लड लेते हैं तो क्या होता है कि सही रीति से खून की जांच हो सकती है, ब्लड का टेस्ट हो सकता है। तो ये ब्लड यहाँ से लिया जाता है और फिर इसे भेजा जाता है पैथोलॉजी। वो डिपार्टमेंट जहाँ पर ब्लड टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी। वहाँ जाके आपके ब्लड सैंपल की टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग किस चीज की होती है, तो सबसे पहले जान लेंगे कि ब्लड में होता क्या है और कैसे उसकी टेस्टिंग होती है। ब्लड प्लेटलेट्स आर स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। Platelets are only about 20% of the diameter of red blood cell. The normal platelets contain is near about 150,000 to 130,000 per microliter of the blood. But since platelets are so small, they make up just a tiny fraction of the blood volume. तो यहाँ आपने देख लिया कि कितने छोटे होते हैं ये प्लेटलेट्स। ये हमारे छोटे छोटे ब्लड प्लेटलेट्स जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। कुछ आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं, कुछ आपको रेड कलर के दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये किस तरह के प्लेटलेट्स है? सबसे पहले तो ये बता दो, दिस इज अ वेन। वेन के अंदर में इस तरह से ब्लड्स फ्लो हो रही है, ठीक है, और वहाँ पर प्लेटलेट्स होते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्लेटलेट्स है हमारे, ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। ये कैरी करते हैं, ये जो आपको रेड रेड टैबलेट्स जैसे दिख रहे हैं, ये हमारा रेड ब्लड सेल है जो कैरी करता है ऑक्सीजन। ऐसा नहीं समझते हैं तो चलिए इसको दूसरे रीति से समझते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो अभी आप थोड़ा देर पहले देखे, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है। तो टाइप्स ऑफ जो ब्लड सेल है वो इस तरह से है। ये रेड ब्लड सेल्स है, ये पहला वाला जो टाइप है, ठीक है। इससे पहले आपने देखा ये व्हाइट रंग का दिख रहा है आपको, ये है आपका नेक्स्ट ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल। देन है प्लेटलेट्स। तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जो ऐश कलर की नहीं बोलेंगे, हल्का येलोइश कलर का अपना आपका ब्लड में फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है, इट हेल्प्स टू कैरी द ऑक्सीजन एज वेल एज द एक्सचेंजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। देन सेकेंड वन इज अ व्हाइट ब्लड सेल, दिस फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। अभी हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो कोरोना वायरस जो हो रहा है पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में, तो उससे हम फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का काम, दे फाइट अगेन द इन्फेक्शंस, ये काम हमारा करता है व्हाइट ब्लड सेल। थर्ड है नॉर्मल प्लेटलेट्स, हम तीनों को भी प्लेटलेट्स बुला सकते हैं। इट हेल्प्स द ब्लड क्लॉटिंग्स, ठीक है। तो जब भी खून बंद नहीं हो रहा है तो हम ये जान जाते हैं कि वहाँ ब्लड प्लेटलेट्स की कुछ कमी हो गई है। तो बच्चों ये ज़रा ध्यान से याद रखिए। इसके बाकी जो नाम है आपका न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, ये आप बड़े क्लास में जब जाओगे तो आप सीखोगे। फिलहाल आप इतना ही जान लो कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये 3 तरह के जो प्लेटलेट्स आपके बॉडी में, आपके ब्लड में मिलते हैं। द टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट इज मेड इन द बोन मैरो एंड फाउंड इन द ब्लड, रेड ब्लड सेल, contain a protein is called the hemoglobin, which carries oxygen from the lungs to all the parts of body. Also called the ये आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप यहाँ तक जान लो कि इसे हम कहते हैं कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी होता है हमारा शरीर के लिए, जैसा हम जानते हैं। तो दिस आर द ब्लड सेल्स एंड टाइप्स
एंड विद द फंक्शंस। तो ये सारे आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, यहाँ आपके रेड सेल्स हैं और ये छोटे छोटे यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं। नो यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर में देखिए आपको एक पिक्चर दिख रहा है, जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये ज़्यादातर हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स ये कलर के पिक्चर में आपको दिख रहा है जो थोड़ा सा पर्पल है और थोड़ा सा ब्लू कलर में आ रहा है। ये जो येलो कलर का फ्लूइड शॉट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और ये जो गोल्डन कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं आकार आपको, ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये है हमारा रेड ब्लड सेल जो कैरी करता है ऑक्सीजन। अब ये हमारे ऑक्सीजन को कैसे कैरी करता है, हमारे लंग्स से निकलते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद रेड ब्लड सेल में वो जाते हैं, रेड ब्लड सेल से वो निकल करके आते हैं ऑक्सीजन, उसके इनसाइड एंटर करते हैं और थ्रू उसके ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और सेम होता है कि उल्टा अगर कर दें तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, रेड ब्लड सेल के थ्रू से, ये लंग्स से थ्रू से फिर बाहर निकल जाता है। वाइट ब्लड सेल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरह से, और छोटे छोटे प्लेटलेट्स जो हमारे हैं वो भी उससे जुड़ चुके हैं। तो ये हमारे जो है सेनापति है बोल दीजिए, हमारी रक्षा करने वाला है, हमारे दुश्मनों से लड़ने वाला है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इस तरह से अगर टाइम लिया जाए तो जितना हद तक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जब निकलता है तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इनसाइड होता है और ऑक्सीजन अंदर में जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और इन दोनों बातों के लिए हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपकी कोई ब्लड वेसल इंजरी हो जाती है तो भी ये दिक्कत आपको हो सकती है, और उसी समय क्या होता है कि तुरंत हमारा जो वाइट ब्लड सेल है वो भाग भाग के आता है और वहाँ पर पहुँच जाता है ताकि कोई भी हमारा दुश्मन जो है वहाँ पर अटैक ना करे, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो इनसाइड द ब्लड वेसल तुरंत वहाँ पर बाकी प्लेटलेट्स भी पहुँच जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा वहाँ से निकल ना जाए और ब्लड की कमी हमारे बॉडी में ना हो जाए। आप देख सकते हैं जब भी कोई बैक्टीरिया आता है तो उससे लड़ाई करने के लिए वाइट ब्लड सेल हाजिर हो जाता है। कि जैसे अगर इस एग्जाम्पल को लिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कभी आप बरसात में जब भीग जाते हो या कुछ आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपको हल्की सी फीवर होती है। तो ये फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, मगर जब ये वाइट ब्लड सेल और बैक्टीरिया के बीच में लड़ाई हो रही होती हो तो आपको हल्का फीवर हो सकता है। हाँ, जब आपकी फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़रूरी है जांच करवाने की, ताकि आप पता लग सके कि बहुत ज़्यादा कोई घातक बीमारी आपको ना हो रही हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है रेंज। नॉर्मल रेंज जो होता है एक मेल के अंदर में वो 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और हाई नॉर्मल रेंज इतना दूर तक उसको पहुँच हो सकता है अगर उसका ब्लड में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज दैट इज़ द 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। एक्सेप्टेबल फॉर डोनेटिंग, कौन कितना ब्लड होने से आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मेल में है 13.0 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल में है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में जो नॉर्मल रेंज है वो 12.0 की है और जो हाई लेवल है वो 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर की है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें एनीमिया क्यों है, और इससे पहले कि हम यहाँ रजत की ब्लड रिपोर्ट देखें जो रजत ने हमें दिया है ब्लड रिपोर्ट देखने के लिए, तो पहले जान लेते हैं कि एनीमिया क्यों होती है और कैसे होती है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स आपको यहाँ देख रहे होंगे, और ब्लड आरबीसी के अंदर में ये छोटे छोटे जो दाने आपको नज़र आ रहे हैं ये है हीमोग्लोबिन के छोटे छोटे दाने। ये छोटे दाने बने होते हैं आयरन से, ठीक है, आयरन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मगर हमें एनीमिया कब होता है, जब हमारे ये ब्लड प्लेटलेट्स किसी वजह से ऐसे टूट फूट जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, तो ये वेसल में ही अटक जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपको ब्लू कलर की
रे दिख रही है, जो ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है साफ दिख रहा है, मगर यहाँ देखिए ब्लू कलर की रे में ऑक्सीजन रुक गई है, तो ये इस वजह से ऑक्सीजन रुक जाता है। तो जिसको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है और जिसको ब्लड में हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, तो उसको सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है, उसके पैर हाथ भी फूल जाते हैं। कभी कभी कोई थोड़ा से हेल्दी हो जाते हैं और लोग बोलते हैं कि बाप रे इतना खा के मोटा कैसे हो गया, मगर उनको खून की जांच जल्दी करा लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपके बॉडी में स्वेलिंग आती है तो उसका कारण ये भी होता है कि आपके हीमोग्लोबिन में कमी हो सकती है। तो यहाँ देखते हैं कि पेशेंट के जो हीमोग्लोबिन है वो कितना कम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप फिर से आप देख लीजिए कि सिक पीपल के हीमोग्लोबिन किस तरह से कम हो जाते हैं और किस तरह से जो उसके WBC है इधर उधर टूट फूट जाते हैं किसी भी वजह से। तो इसे ठीक करने का काम हमारे बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए, और कुछ कैप्सूल्स भी कभी डॉक्टर्स देते हैं, टॉनिक भी देते हैं, जिससे हम ठीक होते हैं। तो ये सारी बातें तो आप खुद नैन्सी से, रजत से बातें करके जान चुके हो, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है कि मच्छर सब देखने में एक जैसा ही होते हैं, ठीक है, मगर कौन से मच्छर हमें मलेरिया के लिए बाध्य होती है कि हमें मलेरिया हो जाए? क्या कोई भी मच्छर हमें काटता है तो ऐसा हो सकता है? तो रजत लोगों ने तो बातें कर ही की, अभी आपने सुना ही। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले देखते हैं इनकी लाइफ साइकिल कि मॉस्किटो आखिर क्यों हमें काटती हैं, क्या कारण है कि वो हमारे पैर में ही काटती हैं। तो उसको जानने के लिए हमें इनकी लाइफ साइकिल थोड़ा जानना जरूरी है। In the Aedes mosquito have 4 life stages: eggs, larva, pupa, and the adult. Mosquito can live and reproduce inside the and outside the home. The entire life cycle from an egg to the adult take approximately 8 to 10 days. तो ये बहुत कम दिनों के अंदर में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करती है। Egg hatch when the submerged in water, larvae are aquatic and develop into the pupa in as little as 5 days. ये 5 दिनों में ही तुरंत प्यूपा बन जाती है। तो ये प्यूपा क्या है, एग क्या है, लार्वा क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये है आउटलुक ऑफ द मॉस्किटोज लाइफ साइकिल। सबसे पहले ये छोटा छोटा एग, ओके, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन एडल्ट। तो हम लोग शुरू करते हैं एग से। सबसे पहले गंदे पानी, जमे पानियों में क्या होता है, कोई भी मॉस्किटो, ठीक है, कोई भी मॉस्किटो एग देती है, और एग देने से पहले वो चूसती है आपका खून। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग देने का पहले वो अपना खून आपका खून चूसती है, और जो खून का मेजर पार्ट है वो अपने पेट में रख ले रही है, और जो पानी का पार्ट है, जो लिक्विड फॉर्म है, वाटर फॉर्म है, वो उसके पीछे से ही निकल जा रहा है। आपको सुन के बहुत मजा आएगा कि जो मॉस्किटो होते हैं उसके जो डंक होती है, जो उसके निडल होते हैं, उसके एक निडल जो आपके अंदर में वो डाल रही है, उसके अंदर में 6 निडल होते हैं। 2 निडल में छोटे छोटे दांत होते हैं और 2 निडल मसल्स को पकड़ती हैं। एक निडल से वो आपका ब्लड सक करती हैं और दूसरे निडल से वो उसमें वायरस छोड़ती हैं। तो एक छोटे से निडल के अंदर में 6 निडल होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जब सक कर रही है तो इसके अंदर में 6 निडल है। ये एक निडल जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसके अंदर में 6 निडल्स है, और ये डेंगू फैलाने वाली मॉस्किटो है। इसके जो पंख होते हैं उसमें कैसे ब्लैक एंड व्हाइट के ऐसे धब्बे होते हैं। तो इसको आप उसके स्ट्रक्चर से भी आप जान जाएंगे कि ये डेंगू फैलाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तरह तरह की मॉस्किटोज। ये है एनाफिलिस जो मलेरिया फैलाती है, ये जो साइड में है, ओके। ये है जो डेंगू फैलाती है वो, और बाकी दूसरे मॉस्किटोज भी हैं जो दूसरे वायरसेस फैलाते हैं। इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो सबसे मज़ेदार बात इन मॉस्किटोज में होती है कि इनकी जो फीमेल्स हैं, मतलब जो मादा मच्छर होती है, बस वही जर्म्स और वायरस फैलाती हैं। ये ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि आपके अंदर ये जाके खून चूसती हैं और सारे वायरस को आपके बॉडी में छोड़ देती हैं। क्योंकि खून चूस के इन्हें क्या करना होता है, एग देना पड़ता है, और एग देने के बाद यही बड़े होते हैं। तो लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए ये आपका ब्लड लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये खून इस तरह से आपके मसल से ले रही हैं, और जर्म्स
आपको दे रही है, जो सीधे लंग्स में जाके इफेक्ट करता है। सिर्फ लंग्स में नहीं, ये जर्म्स डायरेक्टली आपके रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसके अंदर में घुस जाता है। इसलिए तो मलेरिया के लिए ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। ये देखिए सीधा इसका डंक जा रहा है कहाँ, आपके जो ब्लड वेसल है उनमें डायरेक्ट, ठीक है, वो जगह बना के ठीक ब्लड वेसल में ही जाके वहां से ही खून लेती है। अक्सर ये अंडे देती है गंदे जगहों में। जब खून पी लिया तो अब ये अंडे देने आ गई, तो घर के आसपास में डर्टी वाटर अगर नहीं जमे तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर डर्टी वाटर जमेंगे, गंदी पानियाँ 2 दिन से ज़्यादा अगर एक जगह पे ठहर जाएंगी बरसात के दिनों में स्पेशली, तो क्या होगा, ये मच्छर आके वहाँ अंडे देते हैं और अंडे देने के पहले वो बहुत सारे खून को चूसना शुरू करेंगे आपके घर के आसपास। और सबसे मज़ेदार बात है कि आप जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो आप सेंस ऑर्गन के बारे भी वहाँ पढ़े थे। वहाँ था कि कुछ इंसेक्ट्स के, कुछ एनिमल्स के जो सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत ही सेंसिटिव रीति से काम करते हैं। आप जानते हैं कि ये मॉस्किटो का स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो आपके पैर के आसपास जो गंद स्मेल आता है, आपके पैर के जो आप ह्यूमन बीइंग उसका स्मेल आता है, तो उसी से वो जान जाती है कि ये आसपास, क्योंकि वो बहुत ऊपर तो ईगल की तरफ फ्लाई नहीं करती है, वो तो आपके जो नी होते हैं उसके नीचे के लेवल में ही फ्लाई कर पाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके एंकल में वो जब स्मेल सूंघती हैं तो वो फट से पता लगा लेती है कि आप इधर ही आसपास हो, इसीलिए वो पैर में देखिएगा मच्छर सबसे ज़्यादा आपको काटते हैं। तो देखिए ये है एग्स, ये जो हमारी एनाफिलिस मॉस्किटो है, यहाँ एग्स दे रही है। एक बार में ये बहुत सारे एग्स दे रही है और शायद ये पत्तों के ऊपर में एग्स देना शुरू कर दी हैं। तो जब ये एग्स देती हैं तो ये ज़्यादा खून चूसती हैं और जितना खून चूसती हैं उतना वायरस वो फैलाती हैं। और एक बार में ये देखिए बहुत सारे एग्स दे रही हैं। और ये एग्स देखने में कैसे दिखते हैं, साबूदाने की तरह, थोड़े लंबे आकार में है, मगर जैसे साबूदाना को अगर आप पानी में थोड़ा उबाल लो तो देखोगे वो फूल जाता है और जब उसको हाथ से प्रेस करेंगे हम तो आराम से वो प्रेस हो जाता है। तो ये जो एग्स है कुछ उसी तरह से दिखती हैं। ये है लार्वा, हमारा नेक्स्ट स्टेज। जब एग्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये इस तरह से नजर आते हैं जो पानी के ऊपर दिखते हैं। आपके बुक में भी बहुत अच्छे से इसकी एक फोटो लगाई गई है जो पानी के ऊपर में, अगर 2-3 दिन तक पानी को उसी तरह छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर में इस तरह से लार्वा बन जाते हैं। ये लार्वा हमारे जो फ्रॉग है उसके समान, फ्रॉग के लार्वा के समान ही दिखती है। एक्चुअली जितने इंसेक्ट्स हैं सबका लार्वा स्टेज में जो लुक होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, ठीक है। ये मलेरिया इन्फेक्शन आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है कि ब्लड सेल के अंदर में ये मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं वो घुस जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है आपके बुक की फोटो जहाँ पे लार्वा आपको दिखाया गया। मुझे तो देख के ही गंदगी लग रही है बहुत, और ये सड़ा हुआ पानी और उसके ऊपर में ये लार्वा कैसे लटकते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये लार्वा स्टेज मॉस्किटो का सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट है एग, सेकेंड है लार्वा। तो माय नेक्स्ट स्टेज इज प्यूपा, ये हमारा लार्वा बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। प्यूपा इस तरह से होता है जैसे कि किसी ने कमरे में आपको कैद कर दिया हो। खून मॉस्किटो पीती हैं आपके उनका अंडा देने के लिए, मगर ये लार्वा और जो प्यूपा अवस्था में ये लोग एनवायरनमेंट से या नेचर से जो गंदगी है वो सभी कंज्यूम करते हैं, मगर प्यूपा अवस्था में वो कुछ खा पी नहीं सकता और अपने आप को चारों तरफ से कवर कर देता है। और इसी हालत में उसके विंग्स और उसके बाकी सारे फीचर्स और स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अंदर ही अंदर बनना शुरू हो जाते हैं एक एडल्ट फॉर्म में आने के लिए। तो इस तरह से ये दिखता है प्यूपा, चारों तरफ से कैद, और अंदर ही अंदर वो तैयार हो रहा है एक बड़ी मच्छर बनने के लिए। तो एडल्ट फिर से ये बड़ा मच्छर बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल मॉस्किटो की। अब देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ब्लड सेल के अंदर में किस तरह से ये जो हमारे पैरासाइट्स है वो घुस जा रहे हैं और किस तरह से हमें, और ये पैरासाइट क्या करते हैं, इसके अंदर घुस तो जाते हैं, वहां तक सही है, मगर ये फिर वहां जाके अपने अंडे देने लगते हैं और वहां जाके वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए एक घातक बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो अंदर एक भी पैरासाइट चला जाए तो वो वहां बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो ये पैरासाइट कुछ इस तरह से होते हैं, फीमेल एंड मेल, और अंदर से वो रिप्रोडक्शन करते हैं और धीरे धीरे बढ़ करके मलेरिया के जो जीवाणु होते हैं वो फैलने लगते हैं पूरे बॉडी में। अगर एक भी पैरासाइट अंदर चला गया तो वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरी करके वहां से निकलता है। इसलिए एक टाइम शेड्यूल इनके लिए बना रहता है। ये है सिंकोना ट्री। आप देख सकते हैं, मेडिसिन फॉर द मलेरिया। फ्रॉम अर्ली टाइम द ड्राइड एंड पाउडर bark of the cinchona tree was used to make a medicine for the malaria. Earlier, people used to boil the bark powder and strain the powder, which was given to the patient. Now tablets are available. तो ये सिंकोना ट्री के फूल है और ये उसका बार्क है जिससे बनता है मेडिसिन जिसका नाम है क्विनाइन। तो क्विनाइन अब टैबलेट्स में आते हैं, पहले के दिनों में इसके रस को निकाल के पिया जाता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो इतने घातक बीमारी की जो औषधि है वो हमारे पास है और हमारे देश में ही मिला है कि इसका कैसे निवारण किया जाए। तो मेड क्विनिन, आप देख सकते हैं क्विनाइन कैसे बनता है। ये बार्क का जो पाउडर निकाल देते हैं और इससे ये बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं रजत की और ब्लड रिपोर्ट जो है उसको मलेरिया हुआ था और उसने अपनी ब्लड रिपोर्ट इस तरह से यहाँ शेयर किया हुआ था और यहाँ पर लिखा है मलेरिया के मेडिसिन के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। ये एनीमिया के बारे में जो भी बातचीत है हम इनसे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रजत की रिपोर्ट हमारे पास है। चलिए रजत की रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। रजत जिसकी उम्र है 11 वर्ष और उसे जब फीवर हुआ तो कैसे पता चला कि उसको ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार होता, फीवर विद द चिल एंड रिकर्स। तो जब आपको ठंड लगे, बुखार हो और कपकपी की बुखार हो तो ज़रूर से डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है कि ये आपको मलेरिया का पैरासाइट्स आपके ब्लड में मिल गया है या नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मिले या नहीं मिले तो आप उसको ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। तो चलिए इन लोगों की बातें सुनते हैं, ये लोग क्या बातें कर रहे थे थोड़ा देर पहले। ये आरती, रजत इस एनीमिया के बारे में। You know, I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test shows that I had anemia. I don't know much about the anemia. Thank you, ma'am. Will you tell me? What is that, Aarti? Anemia? I never heard this. What is this? Anemia? The doctor said that there is less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave me medicines to give me strength. He also said that I should eat degree, almond and more green leafy vegetables because these have iron. Jagri, you know, I like to eat good. बहुत अच्छा लगता है मुझे। आंवला, yes, very good for my hair also. How can there be the blood, iron in a blood? I cannot understand this. Means iron in the blood. How it is possible? How it is possible? So we can keep the nails and any irons slabs or rods. We can have the irons. I'm sorry. I'm not able to understand. There was something about the newspaper yesterday. You know that. Nancy, iron means not eating the rod and nails of iron. Iron in our blood means just we understand, no? In our red blood cells, there is the hemoglobin, and hemoglobin consists of the iron, small molecules of iron. Yes, I got.
Arthur. So what do you think? So then you ate iron or what? Silly Rajat. This is not the iron used to make this keys. I don't know exactly what it was. After I ate lots of vegetables and whatever the doctor said to me, my hemoglobin went up, up to 2 levels. See, my blood reports are there. Anemia common in Delhi schools. You know that? 17 November 2007, thousands of children studying in the municipality corporation schools in Delhi suffered from anemia. This has affected both their physical as well as mental health. Due to anemia, children not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now health checkups are being done in the schools and health cards are being made for the children. Anemic children are also being given the iron tablets. तो है ना ये बड़ी मज़ेदार बात कि अब स्कूल में भी पता चल रहा है कि आपको एनीमिया है या नहीं, आपकी ब्लड लेवल कम होती है या नहीं। तो चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, कम विथ मी। ट्रीट फॉर मॉस्किटो। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो अब तक आप लोग जान लिए हैं यहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, बहुत सारे तरह तरह के मॉस्किटोज हैं और फीमेल एनोफिलिस जो होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है मलेरिया फैलाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं एनीमिया का रिपोर्ट जो अभी तुरंत उनकी पिंकी दीदी ने आपको बताया कि क्या रिपोर्ट में आया था दिल्ली स्कूल्स में। यहाँ आरती का ब्लड रिपोर्ट एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। आरती का ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन में 8 ग्राम पर डेसिमल आया 20 of 6 month 2007 में, मगर वही 9th मंथ में मतलब सितंबर में उसका आया है 10.5, मतलब थोड़ा सा हीमोग्लोबिन उसका रेंज जो है वो बढ़ गया है। मगर फिर भी उसमें एनीमिया डायग्नोसिस फिर भी करा हुआ है क्योंकि इसका नॉर्मल जो पॉइंट होता है वो 12 होता है फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन से फूड्स हम खाएंगे तो जो रिच होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हमें आयरन्स मिलते हैं, तो स्पेशली ये सारे फूड्स आइटम्स जो आपको दिख रहे हैं सब रिच है। मेरे नज़र में मुझे लगता है बनाना के जितने आइटम्स होते हैं, चाहे लीफ हो, चाहे बनाना हो, अनार हो, ये सारे चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है आयरन के लिए। बीट हो, गाजर हो, इस तरह की चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। बादाम हो, तो ये सारी चीज़ें रिच होती है आयरन्स के लिए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कैश्यू नट्स है, लीवर्स है, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए लीवर भी होता है जो बहुत ज़्यादा उनको ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंस को बढ़ा देता है। तो ये एनीमिया के लिए देख सकते हैं होम रेमेडी क्या क्या जो खाने से बहुत ज़्यादा जल्दी आपका रिकवर होगा। होल ग्रेन्स है, टोमेटोज है, स्पिनच है, लीवर्स है, बीटरूट, एप्पल जूस, डेट्स, नट्स, लेगुमिनस मतलब जो बीज वाले प्लांट्स होते हैं वो, बनाना, ठीक है, लेगून, फिर बॉटल गट सूप, ये सब कुछ जो है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में ब्लड में मदद करता है। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से क्या हमें पता चला कि हीमोग्लोबिन आरती की कम है। हैव यू हैड हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल? आपके स्कूल में क्या हेल्थ चेकअप होती है? आपको डॉक्टर ने क्या कहा है वो आपको इसमें बताना। फाइंड आउट, तो ये डॉक्टर से पूछ के जो भी होगा क्या क्या खाना आपको खाना नहीं खाना वो आप लिख सकते हैं। या फिर से जैस्क्रित नैंसिस की अपनी बातचीत वापस आ गई है अबाउट द कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ये सब कैसे फैलते हैं उसके बारे में। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, आपके घर के आसपास ये वाटर कलेक्ट होने कभी मत दीजिए। फिल अप द पिट्स, जो गड्ढे हैं उनको भर दीजिए। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन, जो आपके कूलर्स हैं और वाटर टैंक्स हैं उसको आप हमेशा क्लीन करते रहिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, हर वीक उसको सुखाना ज़रूरी होता है।
यूज मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। कुछ जगहों में आपको स्प्रे करना पड़ेगा जहाँ पर पानी जमा हो गया है, केरोसिन का स्प्रे। आजकल तो जो म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस हैं या अपने अपने सिटीज़ में भी स्प्रे मॉस्किटो भगाने के लिए दिया ही जाता है, मगर उसके अलावा भी अपनी प्रोटेक्शन कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके बीच में क्या बातचीत हुई है, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये नैन्सी रजत आपस में फिर क्या बातें कर रहे हैं। Hello, Nancy. This poster says something about the larva. What is that, Nancy? I cannot understand. Rajat, they are baby mosquitoes, and they don't look like mosquitoes at all. See how they are looking? Hello, friends. You see that? There is a mosquitoes posters outside in our classroom. Did you watch that one? I cannot understand. What is that? What did you see there? What is that? Oh my god. All are looking around. Just alike. सारे एक जैसे दिख रहे हैं. Aarti, there was an old pond laying behind our house. It was full of water for some days. Then I looked there and saw some tiny thread-like grey thing swimming. I was surprised when Mummy told me that this had come out of the eggs which mosquitoes lay in the water. They called larva. I also heard something about this on the radio. It's not very good, no? The dirty place, thread-like structures, and they are also moving. That video clip, Madam shows us, no? Just like that, no? Hey, Nancy, what did you do with them? What to do? Papa immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and kept upside down so that no water would collect. I think this is the best process to dry up that container because it will remain like that and so many mosquitoes will grow up now. Papa said to me. Mummy also told me that one. Friends, my Sahazia auntie also told me that these types of flies spreads the diseases, and especially we have the stomach problem due to these diseases. My auntie is very good auntie. She told me about all the things about how to spread the diseases and all that. Hey, what are you telling? Just great. Fly cannot bite. Then how do they spread the disease? I cannot understand this one. How? Let's go. Let's go to the Pinky Didi's house once again to know more about this. Okay, friends, let's come with me and we'll cook here. हेलो बच्चों, आप फिर आ गए? कोई बात नहीं, आज मैंने कस्टर्ड बनाया है आपके लिए, मगर मैंने इसे ये जो कंटेनर है उसके ऊपर ढक्कन से ढक दिया, वरना मक्खियाँ आती और उसके ऊपर बैठ जाती। बहुत सारे फ्लाइज जर्म स्प्रेड करते हैं, है ना? आप भी यही पूछना चाहते हो ना? मुझे नैन्सी ने फ़ोन करके बताया कि जो फ्लाइज है और दूसरे इंसेक्ट्स है जो हमें नहीं काटते हैं, फिर वो कैसे फैलाते हैं रोग। वेरी सिंपल, जो रोग के कीटाणु होते हैं, वायरस एंड बैक्टीरियाज, वो उनके पैरों में चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जैसे ही
वो पैरों से हमारे खाने के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ पर जर्म्स छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारे खानों तक पहुँच जाते हैं। इसलिए मक्खी को और दूसरे इंसेक्ट्स को अपने खानों में बैठने नहीं देना चाहिए। हमेशा खाना ढक के रखना चाहिए। समझ गए? तो चलो कस्टर्ड खाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया कि नैन्सी रजत के बीच में क्या बातचीत हुई और वो लोग पोस्टर बनाने के विषय में क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ क्या उनके बीच में सर्वे चल रहा है। ठीक है, तो चैप्टर को फिर आगे बढ़ाते हैं। ये आपका सर्वे रिपोर्ट्स आपको प्लान करना है आपके क्लास के अनुसार 2 जन के लिए। तो यहाँ शुरू करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने भारतवर्ष में रह करके एक बड़े काम को किया। A scientist peeped into the mosquito's stomach. Peep करने का मतलब है उसके अंदर में झांकना और देखना कि उसके स्टमक में क्या है। This interesting incident took place almost 100 years ago. A scientist found out that mosquito spreads malaria. Let's read about this discovery in his own words. आइए देखते हैं इनके अपने अंदाज में, अपने लिखे हुए वर्ड्स में, शब्दों में कि इन्होंने कैसे खोज किया। और बहुत दिनों की पहले की ये बात है, लगभग 100 साल पहले की बात है। तो वो क्या लिख रहे हैं? My father was a general in the army. I studied to become a doctor, but what I really liked was reading stories, writing poetries, music and dramas. In my free time, I enjoyed doing all these things. तो ये रोनाल्ड रोज हैं जो ये लिख रहे हैं कि उन्हें बचपन से ही उनके पापा जब आर्मी में थे तो उन्हें रीडिंग राइटिंग करने का बहुत शौक था, पोएम्स लिखने का शौक था और उनको आर्मी में आने का कुछ ज़्यादा शौक नहीं था। In those days, thousands of people died from disease that we know now called malaria. उन दिनों में हम लोग बहुत लोग हमारे सामने मर रहे थे। इन आज के दिन में उस डिजीज का नाम है मलेरिया। This was found in area where कहाँ मिलता था? There was a lots of rain and in swampy places. तो जब वो लोग इतने ज्यादा मर रहे थे, चारों तरफ में हाहाकार मचा हुआ था, तो वो किस एरिया में ऐसा हो रहा था? ये हो रहा था वहाँ जहाँ काफी रेन होती है, अर्थात बरसात होती है, और स्विम्पी और डंप एरिया जहाँ होते हैं। People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swamp area. वो सोच रहे थे कि डर्टी स्विम्प एरिया से जो पॉइजनस गैस निकल रहा है उसी के कारण ऐसा हो रहा है। They gave it the name malaria, which means bad air. उन्होंने इसका नाम दे दिया था मलेरिया, इसका मतलब होता है बैड एयर। One doctor has seen tiny germs in the blood of one of the patients. डॉक्टर ने देखा कि छोटे छोटे जर्म्स हैं ब्लड के अंदर, और जब उन्होंने देखा कि कुछ तो गलत बात हो रही है इनके साथ, जर्म्स कैसे आ गए इनके ब्लड में। When he observed it under the microscope, but he could not understand how this had got into the patient's blood. मगर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेशेंट के ब्लड के अंदर में कैसे जा गए। फिर वो आगे लिख रहे हैं, My professor had some idea about this. मेरे प्रोफेसर जो थे जिनके अंडर में वो स्टडी करते थे, उनको एक आइडिया आया। I think that this disease may be carried by some kind of mosquito. वो प्रोफेसर ही ने और सबसे पहले उनको बताया, मुझे लगता है कि ये कोई मॉस्किटो से हो रहा है। As this incident, I spent all my time chasing the mosquito to catch and observe. We used to carry empty bottles and chasing the mosquito after mosquito. उन दिनों में हमारे फिर धुन लग गई कि हम मॉस्किटो को पकड़ने लगे। जहाँ जो मॉस्किटो मिलता वहाँ उसको जाके पकड़ते। एक बॉटल लेकर के मैं घूमता था हमेशा, ताकि जो भी मॉस्किटो दिखे मैं वहाँ उसे पकड़ लूँ और उस पर फिर रिसर्च करूँ। Then we would put the mosquitoes into the mosquito net
in which there was a patient of malaria. The mosquito would have a feast, biting these patients. The patients were paid 1 anna for allowing one mosquito to bite them. और मॉस्किटो नेट के अंदर में जब हम इन मच्छरों को डालते थे काटने के लिए कि देखें कि वही जम्स है या नहीं है, तो इन पेशेंट्स को 1 आना मतलब आज के जमाने में 1 पैसा हम बोल सकते हैं, उनको दिया जाता था. I will always remember those days at the hospital in सिकंदराबाद. तो ये मॉस्किटोज को कटवाते थे और सिकंदराबाद में ही ये जब रह रहे थे तो अंडर माइक्रोस्कोप वो बैठ के घंटों घंटों तक रिसर्च करते रहते थे कि एक मॉस्किटो के अंदर में क्या है. बहुत देर तक बैठे रहते थे. तो टाइनी जर्म्स जो उनको ब्लड में दिखा था, अभी तक जब तक वो रिसर्च कर रहे थे उनको ये किसी भी मॉस्किटो के अंदर में नहीं मिला. जितने मॉस्किटोज उन्होंने हजार मॉस्किटो कट करके देख लिया कि वही जर्म्स हैं या नहीं है. ठीक है. तो आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दोज डेज एट हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज टू कट एंड ओपन द मॉस्किटो स्टमक एंड पिप इनटू इट. वो घंटों घंटों बैठ करके वहां पर स्टमक काटते थे मॉस्किटो के और देखते थे उसके अंदर में वो जर्म्स है या नहीं. आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स विद ओवर द माइक्रोस्कोप. मैं माइक्रोस्कोप के अंदर में घंटों घंटों गुजार देता था. बाय नाइट माई नेक्स would be stiff and my eyes could not see clearly. मेरा आंख ठीक से देख भी नहीं पा रहा था और मेरा नेक जो था, गर्दन जो था, वो बिल्कुल स्टिफ हो चुका था. It is used to very hot but we dare not fan ourselves as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. वो बोलते हैं कि मैं खुद एक बार मलेरिया से भुगत चुका हूँ क्योंकि एक बार हवा से ये सारी मॉस्किटोज उड़ गई थी. I spent months like with this the microscope but I could not find anything. One day I caught a few mosquitoes then that is looks different. कैसे वो डिफरेंट दिख रही थी? वो पकड़े थे कुछ मॉस्किटोज को और उनको लगा ये मॉस्किटोज थोड़ी डिफरेंट थे. दे वेर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स. उनके ब्राउनिश विंग थे, स्पॉटेड विंग थे. व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर. मैं वहां देखा कि उसके अंदर में कुछ है. आई लुक्ड क्लोजर. आई सॉ दैट these tiny germs look like just like the ones that were found in the blood of malaria patient. वो वैसे ही दिख रहे हैं जो मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में दिखते थे. At last we had the proof mosquito did spreads the malaria. बाद में उनको प्रूफ हो गया कि मॉस्किटो ही है जो मलेरिया फैलाती है. In December 1902 that is Ronald Rose got the highest award of the discovery, the Nobel Prize for Medicine. In 1905 even as he lay dying, Rose's last words were, I will find something new. तो ये हमारे जो डिस्कवरी किए थे मलेरिया के वो हैं साइंटिस्ट रोनाल्ड रोज. और इस तरह से ये अपने जो जार के अंदर में मॉस्किटोज करके रखते थे. ये इनकी टीम थी. सिकंदराबाद ये जगह है जहाँ जो आज भी है और वहाँ आज भी रोनाल्ड रोज के नाम पे बहुत सारे काम हो रहे सिकंदराबाद हॉस्पिटल्स में. और इस तरह से आप देख सकते हैं अगर कभी आप सिकंदराबाद गए तो ये रोनाल्ड रोज की अपनी स्टडी रूम है और उनका माइक्रोस्कोप है जहाँ वो अपनी पढ़ाई करते थे, रिसर्चेस करते थे. और ये इनका वरांडा है उस रूम का जहाँ वो रहते थे. और ये उनको जब नोबेल अवार्ड मिला और जो प्राइजेस मिले उसके लिए. और ये हम देख सकते हैं जो रोनाल्ड रोज के जो सबसे अच्छी बात उन्होंने लिखा था, आई नो दिस इज लिटिल थिंग a minority of man will save. O death, where is thy sting? Thy victory, O grave. तो इसी के साथ हम इस चैप्टर में पूरी तरह से हम समझ गए हैं कि
कैसे मॉस्किटोज़ के द्वारा मलेरिया फैलती है और हमारे ब्लड्स में क्या क्या होते हैं, जिससे हमें अपने लिए प्रोटेक्शन करके रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अच्छी हेल्दी खाना खाना चाहिए और चारों तरफ जितने पानी वगैरह हैं उनको स्टोर होने नहीं देना चाहिए।